Assalamu alaikum. Today we will start another topic of class 12th NCERT book, that is regarding logarithmic differentiation. Okay, let's start. That's regarding logarithmic differentiation. What's logarithmic differentiation? It is a process of differentiating. So we need to actually differentiate a function after taking its logarithm. So we are given actually a function y is equal to f of x. We first apply log. The log of y is equal to log of f of x on both sides, right? We apply log on both sides, then take the differentiation, right? It becomes easy for some function is in the exponential form. So before going to that level, we must first understand the basics of logarithm, the basic properties of logarithm. The first property is that log of two functions, that is m and n, they are in product. When log is applied to their product, it is actually log m plus log n. So whenever it means that we will apply here log of any two functions f into g, this is actually equal to log of f plus log of g, right? So addition. So if we need to differentiate this function now, right, here it means we need to differentiate actually this function, differentiate this, then we can use this differentiation term by term to first to this, then addition up, and then to this, right? Now one more is that is log of m by n, that is in the when the two functions are in division. Then how can we apply logarithm of two functions which are in numerator by denominator in this form? It's actually log of m minus log of n. Look here, minus. And this is mostly used, that is log of m raised to power n. It is in exponent form, right? So what it is equal to n times log of m. So this n actually comes in the front here, and then log is applied to m, right? So these properties we will use in this exercise. Now let's go to a simpler question of the book. The question is differentiate log of x raised to power log cos of x. So it is actually in exponent form. So when it is in exponent form, so it is actually m raised power n type. So its logarithm is actually n times log of m. So this actually n comes in the front. So when we apply log to both sides, here we put y is equal to the given function, right? Applying log both sides, so here it would be log of y, और यहाँ पे आएगा ये cos चूंकि ऊपर है तो ये सामने आएगा cos of x into log of log x. The log we are using, and this is given, this log of x is given, and this is the log that we are using here. I mean, at this step we are taking logs both sides, right? Now what we do in this next setup, we differentiate both sides, differentiate with respect to x, both sides, right? So here differentiation of log of y. अब differentiation of log of y की क्या है? हमें तो ये पता है कि differentiation जो है log of x की जो differentiation है वो है 1 by x. जो log of x की differentiation है वो है 1 by x. लेकिन यहाँ तो log of y है, तो differentiation of d by dx of log of y अगर मैं लिखूंगा तो इसका भी 1 by y ही आएगा. लेकिन यहाँ x नहीं है ना, हम x से differentiate कर रहे हैं, तो into आएगा differentiation of this using chain rule. पहले हमने log की तो 1 reciprocal आ गया 1 by y, and then differentiation of y, that is with respect to x, that is dy by d of x.
वही मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे मसला है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये फंक्शन है और दूसरी ये पूरी फंक्शन है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आएगा, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सो फर्स्ट तो ऐसे है ही, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, राइट, प्लस सेकंड तो ये है ही, ठीक, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। दैट इज एक्चुअली आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट रूल हियर, प्रोडक्ट रूल। Now, first, now this cos of x, what is differentiation? अब हमें यहाँ पे डिफरेंस, अब देखिए यहाँ पे फिर से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आ रहा है। पहले ये log ऑपरेट हो रहा है इस पूरे log ऑफ x पे, फिर ये log ऑपरेट हो रहा है x पे, तो इसका मतलब है हमें चेन रूल फिर से जरूरत पड़ेगा। तो पहले मैं इस log की डिफरेंशिएशन करूंगा, वो आएगा 1 by इट्स आर्गुमेंट। नाउ इसका आर्गुमेंट ये पूरा log ऑफ x है, तो ये 1 डिवाइड बाई इसका आर्गुमेंट दैट इज log ऑफ x इनटू। अब जो ये रूल क्या बोलता है, इसके अंदर जो दूसरी फंक्शन होगी उसकी करो। अब इसके अंदर, इस लॉग के अंदर तो ये वाला लॉग है, लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स की तो हमें डायरेक्ट पता है डिफरेंशिएशन, दैट इज 1 by x, देन प्लस log x, वो y से का y से ही है, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x। अब यहाँ पे मैंने किया है cos ऑफ x और ये न्यू डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x log x, ठीक, ये माइनस को सामने लाया है, सो दिस माइनस sin x, राइट, और क्या रह गया log ऑफ cos x, तो log ऑफ cos x। अब इससे क्या फायदा हो गया, हमारा log, हमें ये निकल रहा है एक्चुअली 1 by y dy by d of x, लेकिन हमें क्वेश्चन बोलता है डिफरेंशिएट दिस, मीनिंग इट मींस दैट वी नीड ओनली dy by d of x। सो हम क्या करेंगे, इस y को इधर शिफ्ट करेंगे इस साइड से, तो ये क्या आएगा y, तो यहाँ पे रहेगा dy by d of x, y into this whole thing, right। अब y का वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज पर cos ऑफ x, जो हमें दिया गया है, जो फंक्शन दी गई है। सो दिस इज y के बदले वो वैल्यू डालो और y की जितना भी हमारा निकला, सो जो भी ये हमारा वैल्यू है ये है अब dy by d x। तो इस तरह से हम अपनी डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली एग्जाम में आते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमने तो जो पहले जो हमने ये क्वेश्चन किया इसमें तो डायरेक्टली हमने लॉग लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मसला है, जब दो फंक्शंस पावर में तो होंगी, लेकिन इस तरह की होंगी, ये भी पावर में है और ये भी पावर, और बीच में सपोज एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी कोई साइन, ठीक है ना। तो ये भी पावर में है, ये अगर मैं log इनको बोथ साइड्स अप्लाई करूंगा, सपोज इसको, फिर log ऑफ m प्लस n ये आएगा। अब log ऑफ m प्लस n तो बराबर नहीं होता है log m प्लस log n, बल्कि log ऑफ m इंटू n होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो डायरेक्टली मैं log यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ। तो हम इस ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे, हम इस क्वेश्चन को पहले y के बराबर रखेंगे, ताकि हमें जो निकलना है वो dy by d ऑफ x निकलना है। अब हम एक काम करेंगे, ये जो पहली वाली टर्म है यानी कि log ऑफ x रेज पर x, इसको किसी और फंक्शन के बराबर, सपोज मैंने यहाँ पे u के बराबर रखा है, ठीक, और जो ये दूसरी फंक्शन है x रेज पर log x, इसको मैंने v के बराबर रखना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमारा यहाँ पे आएगा y जो है वो आएगा u प्लस v। अब ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन आप करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy by d ऑफ x इस साइड से आएगा, तो इसका जब मैं dy dx करूंगा तो u का अलग आएगा और v का अलग आएगा, du by d ऑफ x प्लस dv by d ऑफ x। तो सीधी सी बात है, हमें अगर डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, यानी कि मेरे को dy by d ऑफ x निकालना है, तो सीधी सी बात है, मैं du by d ऑफ x निकालूं और dv by d ऑफ x निकालूं, फिर इन दोनों का एडिशन करूंगा, वो हो जाएगा हमारा dy by d ऑफ x, ठीक है ना। तो वही मैंने करना है। तो हमने जो u के बराबर लिया है उसको भी बिल्कुल वही तरीका हम करेंगे जो हमने u के बराबर लिया है। u जो है दिस इज log ऑफ x रेज पर x, तो चूंकि एक्सपोनेंट फॉर्म है, मैं अप्लाइंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो यहाँ से आएगा log ऑफ u और यहाँ से आएगा, देखिए यहाँ से जब मैं log बोथ साइड्स करूंगा तो log ऑफ u, और यहाँ पे log करूंगा तो log ऑफ log x आएगा, log ऑफ x होल रेज पर x, ठीक। अब ये तो आ गया log ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर m मानो और ये n मानो, तो log ऑफ m रेज पर n वो किसके बराबर होता है, m log m, तो ये m जो है यानी कि x वो पहले सामने आएगा, ठीक, फिर log ऑफ log x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस वाले सेटअप में क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में log ऑफ u तो है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, विद रिस्पेक्ट x में कर रहा हूँ,
ठीक है ना। तो पहले तो log की आएगी, log की डिफरेंशिएशन होती है चेन रूल के हिसाब से 1 by u, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, दैट इज du by d of x। अब इस साइड से दो फंक्शंस हैं, एक तो x है और दूसरा log of log x है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक, 1 by u du by dx, वो तो वैसे ही है। नाउ दिस इज x, वो भी देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये तो हमने ऑलरेडी किया है, log x पिछले वाले क्वेश्चन में। पहले log की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 by log of x, फिर इस log of x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, दैट इज 1 by x प्लस log x वैसे ही है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है 1 के बराबर है। तो इस u को इधर ट्रांसफर कर दो तो हमारा निकलेगा du by d of x। तो u जो आएगा हमारा, सो u जो आए तो du by dx, तो u को इधर ट्रांसफर करेंगे 1 by log of x प्लस, देखिए ये x और ये x जो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस log of log x, ठीक। अब इस u का वैल्यू हम देते हैं, ये जो u का वैल्यू है हमारे पास, u जो है हमारे पास वो गिवन है, दैट इज log of x रेज पर x, log of x रेज पर x, और बाकी वही है, ठीक है। अब जो हमने, ये तो हमने u का du by d of x निकाला, अब हम v की बात करेंगे। v जो है हमारा x रेज पर log of x, वही टेकिंग लॉग्स बोथ साइड्स, यहाँ से आएगा log of v और यहाँ से आएगा log ये पूरे का, ठीक। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म का है तो ये log of x जो है ये सामने आएगा, तो आ गया सामने, फिर रहेगा क्या log of x, log of x, तो मतलब ये आएगा log of x into log of x, तो वो हो गया log of x स्क्वायर। अब इसकी डिफरेंशिएशन में अगर करूंगा, यहां से इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 by v आएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल के हिसाब से dv by d of x। अब ये x रेज पर n की फॉर्म का है यहाँ से, तो ये ट्वाइस log of x तो आएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log of x, राइट, चेन रूल के हिसाब से। सो ट्वाइस log of x तो है ही, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 by x। तो यहाँ पे अगर मेरे को dv by d of x चाहिए, तो ये जो 1 by v है, v को ट्रांसफर इधर कर दो, तो dv by d of x इज इक्वल टू v टाइम्स ये पूरा जो कि इस साइड का है, ट्वाइस log of x into 1 by x, ठीक है। नाउ ट्वाइस log of x डिवाइड बाय x, और v का वैल्यू जो है हमारे पास ये x log of x, ये यहाँ पे दे दो, x log of x यहाँ पे दे दो v का वैल्यू, तो ये आएगा ट्वाइस log of x by x। अब इसके बाद बस सिंपली du by d of x निकाला, dv by d of x निकाला। अब इस इक्वेशन में हम इसको देंगे ताकि हमें dy by d of x निकलेगा, तो dy by d of x जो है दैट इज du by d of x प्लस dv by d of x, ये भी निकाला है हमने ऑलरेडी ऊपर, और ये भी हमने अभी निकाला है यहाँ पे, ठीक। अब हम यहाँ हमने थोड़ा सा इसको हम इतना भी जार रखेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा शो दैट, तो बराबर उस शो दैट तक हमें जाना पड़ेगा। तो हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है हमने, log of x रेज पर x को यहाँ मल्टीप्लाई दिया है, तो सिंपली सीधी सी log of x रेज पर 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आएगा log of x रेज पर इसका एक -1 हो जाएगा, ठीक। तो log of x रेज पर x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई है, और दूसरा तो वैसे है ही, वैसे नहीं है बल्कि यहाँ डिवाइड में x है, देखिए ऊपर है x रेज पर log of x और x रेज पर 1, हमें पता है बेसर्स हैं, पावर्स इन द डिनोमिनेटर they get separated accordingly, right? So ट्वाइस log of x। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने log of x minus 1 को कॉमन निकाला है। देखिए यहाँ पे log of x रेज पर x है, लेकिन कॉमन मुझे निकालना है x रेज पर x minus 1, तो यहाँ अगर एक log of x रेज पर x minus 1, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब 1 बचेगा, लेकिन यहाँ तो log of x रेज पर x minus 1 नहीं है ना, बल्कि इससे एक ज्यादा है, दैट इज x, तो एक रहेगा, बाकी हम बाहर निकालेंगे, ठीक। तो log of x, ठीक, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस log x, ट्वाइस तो मैंने लिखा है, log x भी मैंने लिखा है, अब x रेज पर log of x minus 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, जब भी हमें एक्सपोनेंट फॉर्म का होगा f of x रेज पर g of x की फॉर्म का, तो बेहतर होगा हम लॉग्स पहले अप्लाई करेंगे, जब हम log से अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ, अगर दो फंक्शन f of x रेज पर g of x फिर प्लस कोई और फंक्शन होगी h of x रेज पर सम और फंक्शंस s of x, तो बेहतर होता है हम पुट करेंगे एक पहली वाली टर्म u के बराबर, दूसरी वाली टर्म v के बराबर, देन सेपरेटली वी टेक logs to u and v, then we differentiate and add up their differentiation, we get dy by d of x. So I think let's stop here.